Hello everyone, this is Kritika and welcome to Zen Study where every day we are trying to make education imaginative. आज हम एथिक्स के पेपर को डिस्कस करेंगे, हमारा जो जीएस पेपर 4 है, और हम आज एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे जो कि पिछले साल दैट इज इन 2023 आपके क्वेश्चन पेपर में आया था. So the question is, you have just been appointed as Additional Director General of Central Public Works Department. The Chief Architect of your division, who is to retire in 6 months, is passionately working on a very important project, the successful completion of which would earn him a lasting reputation for the rest of his life. A new lady architect, Seema, trained at Manchester School of Architecture, UK, has joined as the senior architecture in your division. During the briefing about the project, Seema made some suggestions which would not only add value to the project but would also reduce completion time. This has made the chief architect insecure and he is constantly worried that all the credit will go to her. Subsequently, he adopted a passive and aggressive behavior towards her and has become disrespectful to her. Seema felt it embarrassing as the chief architect left no chance of humiliating her. He would very often correct her in front of other colleagues and raise his voice while speaking to her. This continuous harassment has resulted in her losing confidence and self-esteem. She felt perpetually tensed, anxious and stressed. She appeared to be in awe of him since he has had a long tenure in the office and has vast experience in the area of her work. You are aware of her outstanding academic credentials and career record in her previous organizations. However, you fear that this harassment may result in compromising her much-needed contribution in this important project and may adversely impact her emotional well-being. You have also come to know from her peers that she is contemplated tendering her resignation. So what we have understood from this case study is that आप एक additional director general बन के गए हैं एक central public works department में, and there is some project, कोई एक बहुत ही apprehensive project है जो कि ongoing है, और उसके chief जो architecture है वो शायद उनके जो career का ये last project है. So while there is a presentation, कोई एक सीमा नाम की employee है who is very competent, very efficient, वो अपने कुछ ideas share करती है जिनसे जो chief architect है उनको डर लगता है, उनको एक rivalry महसूस होती है कि शायद जो credit है, work का जो credit है, वो सारा credit सीमा को मिल जाएगा, जिस वजह से वो उनको mentally harass करना शुरू करते हैं work space में. And this is not good for the office culture. सीमा जो है, she is in a state of awe, she is in a state of depression, and so she is thinking that वो अब अपना resignation दे देंगी. So this is the entire case. तो क्वेश्चन क्या है, वो केस था, केस स्टडी थी, और अब उसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, what are the ethical issues involved in the above case? What are the options available to you in order to complete the project as well as to retain Seema in the organization? What would be your response to Seema's predicament? What measures would you institute to prevent such occurrences from happening in your organization? So, अब इस केस से हमें क्या पता चल रहा है कि ये केस है एक पुअर वर्क कल्चर का, टॉक्सिक वर्किंग एनवायरनमेंट का. इसमें एक होड़ मची हुई है कि कैसे किसी और की क्रेडिट अपने नाम कर ली जाए. जो विमेन एम्प्लॉयज़ हैं उनके हैरेसमेंट का केस है. सो अब हमारा एम क्या होगा कि एक ऐसा वर्किंग कल्चर इस्टेब्लिश करवा पाए जहाँ पर विमेन आर सेफ, दे फील सेफ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, एंड जो वर्कर्स हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके. So we will now see who are the major stakeholders involved in this entire case. So the first stakeholder is definitely Seema. वो एक efficient staff है, वो well educated staff है, और वो बस इतना चाहती है कि काम बहुत अच्छे से, मतलब वो अपना जो purpose है उस institute में वो properly उसको fulfill कर पाए, काम बहुत अच्छे से कर पाए, और जो उनका जो work है, जो उनके efforts हैं, उसकी उनको credit मिले. The next stakeholder is the chief architect. He is also a very old employee of that organization, but उनका क्या यहाँ पर interest है कि
उनका जो एफर्ट है वो नजरअंदाज ना हो बाय द एफर्ट्स ऑफ अ न्यू एम्प्लॉय। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो मैं हूँ, दैट इज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल, बिकॉज मेरा काम क्या है, मैं इंश्योर करवा पाऊंगी कि किस तरीके से जो वर्क कल्चर है वो इम्प्रूव हो पाए और ये जो पूरा एथिकल डिलेमा है ये मैं सॉल्व कर सकूं। The next stakeholder is definitely the entire organization, क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पूरी फंक्शनिंग जो है वो हैम्पर होगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो उसमें है वो है पब्लिक या द सोसाइटी एट लार्ज, क्योंकि जो वो प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था वो एक पब्लिक प्रोजेक्ट है। तो अगर एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली और एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे, अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में अगर इन्वॉल्व रहेंगे, तो पब्लिक सबसे ज़्यादा सफ़र होगी, क्योंकि टैक्स पेयर्स की मनी वेस्ट होती है, एज वेल एज जो असेट क्रिएट होगा वो उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। So we will cater to the first part of the question. What are the ethical issues involved in the above case? So the first ethical issue is mental harassment at workplace. जो वो employee है सीमा, इतनी competent employee है, but वो अपना proper जो efficiency है वो अच्छी तरीके से function नहीं कर पा रही हैं, जो वो अपना output देना चाहती हैं वो 100% नहीं दे पा रही हैं, because she is scared of her senior, जो कि constantly उनको harass कर रहे हैं, constantly उनको डराने की और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। The next ethical dilemma is illogical and unfair rivalry. He is a senior employee and she is just a newcomer. So इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है कि वो एक न्यूकमर के आने से अपना जो पोजीशन है उससे इनसिक्योर हो जाए। So it is just a very illogical case of rivalry and competition. नेक्स्ट इज अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी। अगर कोई स्पेस है जहाँ पर वुमेन सेफ नहीं फील कर पा रही है, शी इज़ नॉट सिक्योर, शी इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस हर सेल्फ प्रॉपरली, तो इट इज़ अगेन अ केस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। सप्रेसिंग मेरिटोक्रेसी, एज वी नो दैट सीमा शी इज़ वेरी लर्नड, शी इज़ वेरी एजुकेटेड, वो फॉरेन से अपनी डिग्री लेकर आई हैं, एंड नॉट जस्ट दैट, वो अपना काम बखूबी जानती हैं। तो अगर हम उनके एफिशिएंसी को किसी भी तरीके से हैम्पर कर रहे हैं तो उनके मेरिटोक्रेसी पर क्वेश्चन उठाना हुआ, हम उनकी एफिशिएंसी को बर्बाद कर रहे हैं। अगेन इट्स अ केस ऑफ पावर ऑफ अब्यूज, क्योंकि वो जो चीफ आर्किटेक्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे है, उनको पता है कि अभी उनका कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, वो उनकी जूनियर है, वो उनकी सबऑर्डिनेट है, तो वो उनको हैरेस कर रहे हैं थ्रू एनी मीन्स पॉसिबल। देन इज कॉम्प्रोमाइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ वैल्यूज होते हैं कि हम अपने फीमेल एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना चाहेंगे, हम एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करेंगे हमारे एम्प्लॉयज़ को, हम एक हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट बनाएंगे। सो ये सारे वैल्यूज और नॉर्म्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। अगेन फेलियर इन फॉलोइंग वर्क एथिक्स, डेफिनेटली द वर्क एथिक्स इज गेटिंग हैम्पर्ड। ना ही सीमा प्रॉपरली फंक्शन कर पा रही है और ना ही जो चीफ आर्किटेक्ट हैं वो अच्छे से फंक्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि द इंटरनल पॉलिटिक्स एंड द इंटायर एथिकल डिलेमा जो है वो अफेक्ट कर रहा है उनके वर्किंग प्रोसेस को। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू in order to complete the project as well as to retain Seema in the organization. Now, as the head of that institute, I have three major options available. पहली बात तो ये है कि मैं इस जो केस है, ये जो पूरा इंसिडेंट है, इसको नज़रअंदाज कर दूँ, क्योंकि मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि काम हो, चाहे जैसे भी हो सके। सो काम पूरा होना चाहिए। अगर वो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो मेरे जो प्राइम कंसर्न है वो उसी पर होना चाहिए, एंड आई शुड जस्ट ओवरलुक दिस मैटर। नेक्स्ट इज कि मैं जो चीफ आर्किटेक्ट है उस पर डायरेक्ट एक्शन लूँ, या तो उसे फायर कर दूँ या कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लूँ, क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली गलती की है और ये मेरे नज़र में आया है। बट द थर्ड ऑप्शन वुड बी कि मैं सीमा से बात करूँ इंडिविजुअली, एज वेल एज द चीफ आर्किटेक्ट है उनसे भी बात करूँ, दोनों को एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करूं। जो चीफ आर्किटेक्चर है उन्हें भी ये बताऊं कि उनको किसी और की वजह से इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने इतने साल अगर सर्विस दी है तो डेफिनेटली उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं काउंट होगा, वो पूरे लाइफ टाइम उन्होंने जितनी कंट्रीब्यूशन दी है उस ऑर्गेनाइजेशन को, वो सारा कुछ काउंट होगा। एज वेल एज मैं सीमा से भी इंडिविजुअली जाके बात करूँ और उनसे कहूँ कि शी शुड नॉट बी स्कैर्ड, बिकॉज आई विल ट्राई टू हेल्प हर आउट एज मच एज पॉसिबल। Now, what will be your response to Seema's predicament?
as the head of that organization, what are the steps that I would be taking to ensure that certain these cases do not happen in future, as well as how am I supposed to cater to Seema's situation. So as I said, सबसे पहले मैं सीमा को बुलाऊंगी और उनसे पर्सनली बात करूंगी और ये कहूंगी कि बीइंग द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर मेरे रहते रहते सीमा के साथ ऐसी हैरेसमेंट की केस हुई है तो ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन आई वुड अपोलोजाइज टू हर एंड ट्राई to make her, give her that safe space so that वो openly अपनी जो problem है, अपनी जो issue है, जो भी उनके साथ harassment के cases हुए हैं, वो clearly मेरे साथ safe space में आके बात करे और without the fear of being judged. The next would be कि मैं जो चीफ आर्किटेक्ट है उनसे भी बात करूं और अगेन उन्हें भी समझाऊं द सेम थिंग कि उनको डरने की ज़रूरत नहीं है कि किसी और के वजह से अगर उनको ऐसा इनसिक्योरिटी फील हुआ है तो ही शुड ऑल्सो नॉट बी बिहेविंग इन दैट मैनर, एंड अगर उन्होंने ऐसे हैरेसमेंट किया है तो दैट इज डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल इन द ऑफिस नॉर्म्स. सो ही शुड publicly apologize to सीमा. This would be the first step. नेक्स्ट अगेन दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊं ताकि दोनों अपने जो एक्सपीरियंस है शेयर कर सके एक दूसरे के साथ. जो भी सीमा के इश्यूज हैं वो ओपनली द चीफ आर्किटेक्ट के सामने बोल सके, एंड द चीफ आर्किटेक्ट शुड बी गिवन अ चांस टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ दैट व्हाई एंड इन व्हाट सर्कमस्टांसेस ही टुक दोज एक्शंस. And after that, एक unanimous as a head, I will take a decision and make sure that जो भी guilty है उसको उसके जो उसकी guilt है उसी के हिसाब से उसको सजा मिले. Now, future में what measures would you institute to prevent such occurrences from happening in your organization? अब ये क्या कह रहे हैं कि future में ऐसे problems ना हो, इसके लिए as a head what steps will I be taking? So I will make sure that the internal complaints committee जो है उसका गठन किया जाए मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, और ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में रहना ज़रूरी है जहाँ पे विमेन को एक सेफ स्पेस मिलता है वो आके अपने जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं, एनी काइंड ऑफ हैरेसमेंट, एनी काइंड ऑफ इशू अ वुमन इज फेसिंग इन दैट वर्क स्पेस, वो आके वो शेयर कर सके उस इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी में. नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि हम एक जेंडर सेंसिटिविटी कैंप जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पर ऑर्गेनाइज करते रहे ताकि बोथ द मेल एंड द फीमेल दे गेट एन आइडिया अबाउट ईच अदर एंड देयर बोथ द जेंडर्स कैन ओपनली कम आउट एंड स्पीक अबाउट देयर इश्यूज इंडिविजुअली एज वेल एज इन अ ग्रुप. सो दिस इज अनदर स्टेप विच आई वुड बी टेकिंग. द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि एक काउंसलिंग या एक काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज कराया जाए या एक काउंसलर नियुक्त किया जाए उस ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि कोई भी स्टाफ जो है वो ऐसा इशू फेस कर रहा है, उसको अपने काम में अपने एफिशिएंसी में अगर दिख रहा है कि कुछ कमी है तो वो उस काउंसलर के साथ जाकर सेशंस ले सके, थेरेपी ले सके, ताकि वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाए. और इससे क्या होगा, अगर हम एक एक इंडिविजुअल को केटर करेंगे तो इससे होगा ये कि जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगा, एक हेल्दी और एक सेफ स्पेस बन पाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, एक हेल्दी कल्चर इस्टेब्लिश होगा और एफिशिएंसी यूनानिमसली एक प्रॉपर एफिशिएंसी निकल के आएगी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की. सो आई होप आपको ये केस स्टडी प्रॉपरली समझ में आया होगा और इस डिस्कशन के बाद आप इस आंसर मतलब इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर लिख पाएंगे. सो आपसे एक आपके लिए एक टास्क है बेसिकली कि आप प्लीज़ इस केस स्टडी को दोबारा से प्रॉपरली पढ़िए और इसका आंसर लिख के हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें हमें भेजिए. हमारी जो टीम है वो आपके आंसर्स को फ्री में इवैल्यूएट करेगी. टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.